Hello and welcome to the Miles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 12 December 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article for the day is about the cyclone Mandos, which has recently been in the news because it has hit the eastern coast of India, of peninsular India basically, in the regions of Tamil Nadu and Puducherry. So the news says that cyclone may impact the Tamil Nadu and Puducherry coast from December 8 onwards. तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे. So it can be important for prelims. हम इससे कुछ cyclones के बारे में भी जानेंगे, which can be important for our mains GS paper on geography point of view, and it has been taken from the down to earth. तो चलिए पहले यहाँ पे ये जान लेते हैं अबाउट दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन कॉल मंडोज के बारे में. सो इट इज अ स्लो मूविंग साइक्लोन दैट ऑफन एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, कैरीज अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड गेन स्ट्रेंथ इन द फॉर्म ऑफ विंड स्पीड. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज दैट अबाउट दिस साइक्लोन मंडोज दैट इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो होते हैं जो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाते हैं. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी यहाँ पे बोला जाता है. तो नॉर्मली इन द इंडियन ओशन के केस में साइक्लोन कहा जाता है. ठीक है, और ये जो नाम है देयर इज अ मंडोज जो नाम है इट हैज बीन गिवन बाय यूएई. ठीक है, तो बेसिकली देयर आर सम कंट्रीज व्हिच हैज फॉर्म्ड अ ग्रुप और उन कंट्रीज का रिस्पांसिबिलिटी है साइक्लोन्स के बारे में या साइक्लोन्स को नाम देना. हम आगे इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ये जो साइक्लोन मंडोज है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो हियर समवेयर इन द बे ऑफ बंगाल बेसिकली ये जो रीजन है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर यहाँ पे एक साइक्लोन एक्टिविटीज have occurred owing to the depressions, or you can say because of the low pressure which is basically going to hit these regions of Tamil Nadu and Puducherry. Okay, so the IMD, that is the Indian Meteorological Department, has predicted that the storm system may move in the west. Okay, maybe it will be moving in the western direction and northwestern direction and intensify the depression by the evening of December 6th. It may subsequently strengthen further into a cyclone over the southwest Bay of Bengal. So as you can see, this is the Bay of Bengal and here you can see it is the Arabian Sea. So normally if you hear about cyclones in India, ये बस दो रीजन में होते हैं. एक हो गया आपका ये Bay of Bengal और दूसरा हो गया Arabian Sea. तो ये जो cyclone Mandos it is basically occurring in the Bay of Bengal. तो ये southwestern Bay of Bengal में ये originate हुआ है. ठीक है, basically यहाँ पे लिखा गया about the southwest Bay of Bengal and moved towards the Tamil Nadu and the Puducherry coast by the morning of December 8. Now this tropical cyclone, you should know that once it gains momentum या जब भी यहाँ पे एक severe kind of low depression form हो जाएगा, so it basically as I told you it is going to move towards Puducherry और Tamil Nadu. और ऐसा कोई भी जो cyclone रहता है ना, they basically touch up to a speed of 70 to 90 km per hour. ठीक है, जैसे वो एक momentum gain करते हैं, जैसे वो अपना एक speed gain करता है, it may also touch up to 70 to 90 km per hour. So you may understand कि कितना fast move करता है एक cyclone. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि what is a cyclone. तो साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड द लो प्रेशर एरिया. तो देखिए यू शुड नो अबाउट डायरेक्शन ऑफ विंड. ठीक है, द फर्स्ट आइडिया दैट यू शुड नो इज दैट विंड जो होता है वो हमेशा ब्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इस केस पे भी देखिए अगर सेंटर में अगर लो प्रेशर है तो सराउंडिंग में जहां पे भी हाई प्रेशर है ना, तो वहां से क्या होता है विंड जाके कन्वर्ज करता है कहां पे, इस लो प्रेशर में. ठीक है, सो दिस द रीजन व्हाई इट इज सेड दैट एन इनवर्ड एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस अराउंड द लो प्रेशर एरिया. ठीक है, द एयर सर्कुलेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब देखिए विंड्स जैसे ही मर्ज होता है ना, सो विंड्स बेसिकली मर्ज तो हो जाता है लेकिन उससे डिफ्लेक्ट किया जाता है. अब डिफ्लेक्शन यहाँ पे कॉज करता है कौन, डिफ्लेक्शन कॉज करता है कोरियोलिस फोर्स. ठीक है, तो दिस आर बेसिकली टॉपिक्स और यू कैन से सम इंफॉर्मेशन ऑफ जियोग्राफी. ठीक है, तो बेसिकली जब भी विंड मूव करते हैं या वाटर जब भी मूव करता है ना, उसे नॉर्थ में या साउथ में इन द हेमिस्फीयर्स, सो दे आर बेसिकली डिफ्लेक्टेड बाय कोरियोलिस फोर्स. नाउ बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन बाय कोरियोलिस फोर्स ओनली, यहाँ पे जो ये साइक्लोन्स है दे टेक एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द एनएच, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. The cyclones are usually accompanied by violent storms and bad weather. Now यहाँ पे violent storms and bad weather देखिए इसीलिए होता है because ये सारे जो winds है या आप कह सकते हो जो भी air which is converging at the low pressure, be it in the Arabian Sea or be it in the Bay of Bengal, you should know that जहाँ पे भी यहाँ पे मान लीजिए अगर winds यहाँ पे converge कर रहा है to the low pressure, और क्योंकि wind भी sea से आ रहा है, ocean से आ रहा है, तो उस पर बहुत सारा moisture रहता है. तो वो कन्वर्जेंस के साथ वो यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर भी कन्वर्ज होता है जो बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन वो ऊपर मूव कर जाता है और वो वहां पे जाके बेसिकली वो बहुत सारा अमाउंट ऑफ क्लाउड फॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल यू कैन गिव द एग्जांपल द निम्बस क्लाउड, और यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द क्यूमुलनिम्बस क्लाउड.
ठीक है। तो ये जो सारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है तो ये फॉर्म करता है बिकॉज ऑफ द हैवी कंटेंट ऑफ मॉइस्चर और फाइनली ट्रेमेंडस रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन इट कॉजेस, ठीक है। एंड देयर आर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स अगर आप देखोगे डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, तो रीजन के हिसाब से एक जो कि ट्रॉपिकल रीजन में होता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर दोज व्हिच बेसिकली ऑकर्स इन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। और उसके बाहर बियॉन्ड द ट्रॉपिक जो भी साइक्लोन्स होते हैं उनको कहा जा रहा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। बट यू शुड नो दैट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में देयर इज फ्रंटोजेनेसिस व्हिच इज बेसिकली कंसर्न, ठीक है। तो फ्रंटोजेनेसिस देखिए, जब भी एयर मास, मान लीजिए एक वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जब कन्वर्ज होता है ना, जो जहां पे कन्वर्ज होता है उसे फ्रंट कहते हैं। और जब भी एक फ्रंट बनता है, फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। तो फ्रंटोजेनेसिस प्रोसेस इज एक्चुअली कंसर्न इन दिस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे इसे फ्रंटल साइक्लोन भी कहा जाता है, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट क्यों? बिकॉज दे आर बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स का जो बाहर का रीजन है उसे टेम्परेट कहा जाता है, उसके भी बियॉन्ड जो रीजन है उसे पोलर कहा जाता है, ठीक है। Now the World Meteorological Organization जो है it uses the term tropical cyclone to cover weather system, basically wind you can say, in which winds exceed the gale force. तो gale force जो है is minimum 63 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे इसे एक्सीड कर देता है उसी को कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। The tropical cyclone developed in the region between the Tropic of Capricorn in the south and the Tropic of Cancer in the north. The extratropical cyclones occur in temperate zones and high latitude regions, though they are known to originate in the polar region. ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए जो एयर मास होता है, the large homogeneous body of air, तो जब ये कन्वर्ज होता है along the front तो वहाँ पे हो सकता है extratropical cyclone. But in the case of tropical cyclone यहाँ पे frontogenesis नहीं होता, यहाँ पे normal winds converge which basically carries a large amount of moisture. And you should also know the tropical cyclone जो है they have got different names, ठीक है। For example अगर हम यहाँ पे prelims के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे you should know this cyclones जो है, the cyclones have got different names in different region. For example अगर आप बात करोगे Atlantic Ocean में तो वहाँ पे इसे कहा जाता है hurricane. If you speak about the Western Pacific and the South China Sea, उसमें यहाँ पे कहा जाता है typhoon. Then ऑस्ट्रेलिया के केस में इसे कहा जाता है willy willy, and Indian Ocean के केस में जैसे कि मैंने कहा इसे cyclones कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा आपको साइक्लोन मंडोज के बारे में, तो मैंने बताया कि साइक्लोन मंडोज जो है, मंडोज नेम हैज बीन गिवन बाय यूए, ठीक है। अब ये जो नाम है, नाउ दिस नेम्स आर बेसिकली गिवन बाय डिफरेंट कंट्रीज व्हिच बेसिकली फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप वाज फॉर्म्ड द ईयर 2000, जिस ग्रुप का नाम है WMO एस्केप, दैट इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पर्टिकुलर ग्रुप जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द साइक्लोन्स। अब इनिशियली जब ये फॉर्म हुआ था इन 2000, यहाँ पे 8 कंट्रीज हुआ करता था, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड. Now they had come together to name, or you can say to give names to the cyclones in this region. ठीक है. अब देखिए नाम इसीलिए दिया जाता है बिकॉज मान लीजिए कि अगर कोई भी साइक्लोन हैज टेकन प्लेस इन द केस ऑफ द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी, और अगर मान लीजिए कि डिफरेंट कंट्रीज आर नेमिंग इट डिफरेंटली, देन इट विल बी, आप कह सकते हो कि इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर साइक्लोन, है कि नहीं. और मान लीजिए अगर हम बात करते हैं अबाउट इंटरनेशनल न्यूज ऑल्सो, तो वहां पे भी एक डिफिकल्ट यहाँ पे इसीलिए आ जाता है कि साइक्लोन्स को हम किस नाम से बुलाएं. तो इसीलिए ताकि द डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज दे शेयर द सेम ओशंस एंड द सीज, दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव कम टुगेदर टू नेम द साइक्लोन्स इन अ कॉमन मैनर. ठीक है. तो आफ्टर ईच कंट्री यहाँ पे सेंट इन सजेशंस, द WMO एस्केप जो पैनल है ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, दे हैव फाइनलाइज्ड द लिस्ट. So the WMO escape जो है they expanded to include, अब देखिए 2018 में यहाँ पे 5 और कंट्रीज आ गए, जैसे कि ईरान, कटार, देन सऊदी अरेबिया, UAE एंड येमेन. तो ये जो साइक्लोन जो मांडोस नाम है ना, तो ये दिया गया है बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट इज UAE. The list of 169 cyclone names यहाँ पे रिलीज कर दिया गया था बाय IMD ने, यहाँ पे रिलीज किया था इन अप्रैल 2020, वेर प्रोवाइडेड बाय दिस कंट्रीज. तो 13 सजेशन देखिए, अभी पहले जब यहाँ पे कंट्रीज था वहाँ पे 8 कंट्रीज, देन 5 मोर कंट्रीज, सो इन टोटल देयर आर 13 कंट्रीज. तो 13 कंट्रीज ने यहाँ पे ईच कंट्री ने 13 नेम्स दिए, तो बेसिकली देयर आर 169 साइक्लोन नेम्स आर देयर. ठीक है. तो दिस इज हाउ द साइक्लोन्स आर बेसिकली नेम्ड. Now, इस टॉपिक के बेसिस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द इंक्रीजिंग ऑफ द
मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर द मुस्लिम वुमेन, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज द न्यूज सेज दैट रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू अ प्ली फाइल्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टू रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर द मुस्लिम वुमेन। तो यहाँ पे जो ये कमीशन है, तो यू शुड नो द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। नाउ दिस स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली कंसर्न्ड विद एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द वुमेन। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज दिए जाते हैं बाय दिस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एंड दे आर बेसिकली नाउ दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द वुमेन increase the age for the marriage of the Muslim woman, and they have basically filed a plea, और इसीलिए यहाँ पे the government has been asked by the Supreme Court to act regarding this particular plea. Now it can be important from prelims and also from mains. It can be important from the GS paper to issues related to women point of view. It has been taken from the Hindu. तो चलिए बात करते हैं about the current context की why this step has been taken to increase the minimum marriageable age for the Muslim women. तो देखिए इसके पहले लेकिन आपको एक चीज जानना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट्स है, चाहे मैरिज हो गया या मान लीजिए डिवोर्स या एडॉप्शन हो गया, तो ये ना क्या होता है डिफरेंट रिलीजन्स के लिए अलग रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिंदू के लिए कुछ यहाँ पर अलग लॉ रहेगा, फिर मुस्लिम के लिए अलग। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट्स है, दिस बेसिकली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सिविल कोड, ठीक है। तो इन द IPC नॉर्मली यू विल फाइंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर, ठीक है। एक हो जाता है आपका सिविल कोड और एक हो जाता है आपका क्रिमिनल कोड। तो क्रिमिनल कोड जो होता है, क्रिमिनल लॉ जो होता है वो सबके लिए एक हो गया। जैसे कि मान लीजिए अगर क्रिमिनल इफ द ऑफेंडर इज अ हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, जो भी यहाँ पे सजा रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे इन द केस ऑफ द सिविल कोड का अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे जो हाल ही का जो गवर्नमेंट है तो वो बहुत ट्राई कर रहे हैं टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ कॉमनलिटी फॉर ऑल द रिलीजन, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि एक DPSP भी है, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे जो NCW है, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नाउ दे बेसिकली आर ट्राइंग टू इंक्रीज द एज, बिकॉज उन लोग का ये मानना है कि जो मुस्लिम वुमेन जो है उनका जो मैरिजेबल एक्ट जो एज है ना वो काफी कम है, ठीक है। तो इसीलिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम फॉर द वुमेन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इस एज को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे उन्होंने कोशिश किया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज के बारे में, तो देखिए इंडिया के केस में द मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है ना वो फर्स्ट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले दैट इज इन द ईयर 1929 में एक एक्ट आया था जिसका नाम है सारडा एक्ट। तो सारडा एक्ट जो है द ब्रिटिश इंडिया ने लाया था, शुड सारडा एक्ट। नाउ दे बेसिकली फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर द गर्ल्स एट 14 years एंड बॉयज एट 18 years, ठीक है। आप ये बस जान लीजिएगा कि सारडा एक्ट में जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स का जो मिनिमम एज था वो 14 था और बॉयज के लिए द मिनिमम एज वाज 18। तो बाद में आपको बताइए होगा कि बाद में जाके इसे इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इट वाज लेटर रीनेम्ड एज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट CMR 1929। तो ये जो सारडा एक्ट है और ये जो CMR है ये सेम ही है, विच इज बेसिकली पास्ड इन द ईयर 1929 बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। नाउ इन 1978 का अगर हम बात करेंगे, जो ये CMRA है दैट इज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है इट वाज अमेंडेड, इसे चेंज कर दिया गया था टू रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है टू 18 years, ठीक है। तो बाद में देखिए इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इसे अमेंड करके जो मिनिमम एज है ना उसे इंक्रीज करके यहाँ पे इसे कर दिया गया था 18 years फॉर द गर्ल्स एंड 21 फॉर द बॉयज। आपको पता होगा कि आज भी हम यही फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो पोजीशन है इट रिमेन्स द सेम इवन इन अ न्यू लॉ व्हिच इज कॉल्ड द प्रोहिबिशन of the Child Marriages Act, that is PCMA of 2006, which replaced the CMRA। तो CMRA जो था 1929 का जो ब्रिटिश इंडियन जो एक एक्ट था उसे फाइनली अभी रिप्लेस करके लाया गया है द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिजेस एक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग भी लेकिन जो एजेस है वो सेम ही है, दैट इज जो गर्ल के लिए हो गया 18 और बॉयज के लिए हो गया 21। तो अब आता है इशू के ऊपर। अब देखिए हिंदूज के केस में अगर हम आप देखोगे तो हिंदूज का जो मैरिज एक्ट है 1955, नाउ इट बेसिकली सेम एज दैट ऑफ द PCMA ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज फॉर द गर्ल है वो 18 है और फॉर द बॉय इट इज 21 ओनली। इस्लाम के केस में लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। इस्लाम के केस में द मैरिज ऑफ अ माइनर वाज अटेन प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी आपको पता होगा कि 18 तक, तो ऑब्वियसली 18 से काफी पहले ही यहाँ पे यू विल फाइंड द माइनर्स अटेनिंग लाइक प्यूबर्टी, लाइक है कि नहीं। तो यहां पे जब भी प्यूबर्टी अटेन करता है ना तो उसी टाइम को माना जाता है एज द वैलिड एज फॉर मैरिज,
Do you get my point? So this is the reason why ये माना जाता है कि 18 से कम नहीं होना चाहिए. So this is the reason why the National Commission for Women are taking this initiative to increase the minimum marriageable age for the Muslim women. तो यहाँ पे देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ दैट इज द PCMA जो है ऑफ 2006. नाउ इट आल्सो प्रिस्क्राइब्स 18 and 21 ओनली एज द मिनिमम एज ऑफ द कंसेंट फॉर मैरिज एंड वुमेन एंड मेन रेस्पेक्टिवली. तो देखिए अभी आप देखोगे गवर्नमेंट अब अगर हम बात करेंगे लास्ट ईयर का 2021 में, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने अब ये भी ट्राई किया था, दे फेल्ट दैट जो 18 ईयर्स है ना वो भी कम है. ठीक है, तो वो बेसिकली ट्राई कर रहे थे कि इसे भी बढ़ा देना चाहिए तो 21. ठीक है, उनका मानना है कि जो भी बॉयज का जो एज है, बॉयज एंड गर्ल्स का एज शुड बी सेम, इट शुड बी मेड 21 ओनली. ठीक है, तो ये बेसिकली किया गया था. लेकिन ये लाने के लिए जो चेंज है फॉर द न्यू एज ऑफ मैरिज टू बी इम्प्लीमेंटेड, अब ये जो लॉज है ना, दैट इज द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड द PCMA, अब इनको अमेंड करना होगा. तो अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या इश्यूज आर देयर अबाउट दी अंडर मैरिजेस और ऑफ द चाइल्ड मैरिजेस ऑफ द वुमेन के बारे में, तो देखिए तो पहला यहाँ पे बात किया गया है अबाउट द ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में. ठीक है, तो ह्यूमन राइट यू शुड नो कि इट इंक्लूड्स द बेसिकली आप कह सकते हो राइट टू एजुकेशन रहता है, देन राइट टू रेस्ट एंड लेजर, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम मेंटल और फिजिकल अब्यूज इंक्लूडिंग रेप एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. तो ये सारा जो राइट्स है ना, दिस आर सीन टू बी वायलेटेड. ठीक है, ये सारा जो राइट्स है ये वायलेट हो जाता है एज सुन as a girl or a minor is married at an early age. ठीक है, तो आपको पता ही होगा अगर हम एजुकेशन का बात करेंगे, ऑब्वियस सा बात है कि अगर हम 14 इयर्स में या 13 इयर्स में इफ वी मैरी अ गर्ल देन डेफिनेटली हर एजुकेशन वुड बी गॉन इन वेन, राइट. उसके बाद यहाँ पे माना जाता है कि थ्रू दी मैरिजेस ऑफ द माइनर गर्ल यहाँ पे क्या होता है, द डिसएम्पावरमेंट ऑफ द वुमन आल्सो टेक्स प्लेस. ठीक है, तो सिंस यहाँ पे जो चाइल्ड ब्राइड्स है ना, दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, क्योंकि उनका एजुकेशन नहीं रहता है, सो दे आर मोस्टली यू फाइंड देम टू बी फाइनेंशियली इनस्टेबल और टू बी फाइनेंशियली नॉट इंडिपेंडेंट. दे बेसिकली डिपेंड ऑन देयर स्पाउस. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, उनको डिपेंड करना पड़ता है और उनका जो पोजीशन है वो काफी नीचे रहता है. ठीक है, सो दिस बेसिकली लीड्स टू द डिसएम्पावरमेंट ऑफ द वुमन. उसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट हेल्थ इश्यूज के बारे में भी, देन द कॉस्ट ऑफ द चाइल्ड मैरिज इंक्लूडिंग द टीनेज प्रेगनेंसी एंड द चाइल्ड स्टंटिंग. तो देखिए चाइल्ड स्टंटिंग वो होता है दैट इज द इंपेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन दैट लीड्स फ्रॉम द पुअर न्यूट्रिशन एंड द रिपीटेड इन्फेक्शन. ठीक है, एक चाइल्ड को माना जाता है टू बी स्टंटेड इफ दे आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज. ठीक है, दिस बेसिकली इंडिकेट्स दैट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव बीन हिंडर्ड. ठीक है, तो ये काफी अब देखोगे केसेस में हो जाता है. यदि मान लीजिए जो यहाँ पे मदर है, इफ शी इज टू यंग फॉर हर एज टू बी यू कैन से टू कंसीव अ चाइल्ड, राइट. उसके बाद मान लीजिए कि अगर एक अर्ली एज में जब शादी हो जाता है, देन इट मे आल्सो लीड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द रीजन and the poor learning outcomes for children and the loss of women's participation in the workforce, and which basically affects the Indian economy as well, right. So poor education, then malnutrition and early pregnancy also leads to low birth weight of the babies, perpetuating the intergenerational cycle of malnutrition. तो देखिए a person who has attained puberty, अब देखिए according to Muslim अगर हम देखेंगे जो इस्लाम जो लॉ है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कि एक माइनर ने अगर puberty अटेन कर लिया, then she is valid to become married. ठीक है, इस केस में देखिए क्या हो जाता है, person who has attained puberty may be biologically capable of reproduction. However, if you see, the same does not imply that a said person, to be person who has just attained puberty is mentally or आप देखोगे or physically or you can say आप देखोगे like through her mind also. ठीक है, now she may not be mature enough to engage in sexual acts and consequently to bear children, right. The next article is about the Human Rights Day, which has been celebrated in Arunachal Pradesh. So it was basically observed by the Himalayan University. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. Through this article, we'll try to learn about the Human Rights Day, which can be important for our prelims and from mains. It can be important from GSP or the human resource point of view. It has been taken from the Arunachal Times. तो देखिए ये ह्यूमन राइट्स डे के बारे में, इट इज द फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट है, दैट इज December 10. ठीक है, तो December 10 हर साल बनाया जाता है द ह्यूमन राइट्स डे. इट मार्क्स द डे व्हेन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे UNGA कहा जाता है इन शॉर्ट, एडॉप्टेड द डॉक्यूमेंट यहाँ पर एडॉप्ट किया था जिसे UDHR कहा जाता है, दैट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द ईयर 1948. ठीक है, सो दिस इज द रीजन. तो इसी डेट में December 10, 1940 में एडॉप्ट किया गया था, एंड दिस इज द रीजन व्हाई हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है एज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे. तो ह्यूमन राइट्स डे का हम बात करेंगे, इट फोकसेस ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड द फ्रीडम दैट पीपल ग्लोबली आर एंटाइटल्ड टू सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमंस. तो बेसिकली अगर हम ह्यूमंस है तो इट डजंट मीन दैट वी शुड लिव अ लाइफ, मतलब आप कह सकते हो कि वी आर नॉट सपोज्ड टू लिव अ जस्ट लाइफ.
ठीक है. तो when we are born as human, we are supposed to live a life with dignity, and this is the reason why the human rights day जो है, it basically tries to ensure that every person, every citizen, every person around the world is living a life with dignity. ठीक है. They celebrate and advocates for rights that cut across the distinction of nationality, then gender, ethnicity, race, sexual orientation, religion or any other status. तो कोई भी जगह से हो, कोई भी religion से हो या हमारे gender से हो, out of anything else, every person should be entitled with the basic human rights. Okay. So this year, तो ये जो साल है 2022, it marks the 74th anniversary of the adoption of the UDHR. There is a document called the Universal Declaration of Human Rights and the 72nd ह्यूमन राइट्स डे. ठीक है. अगर हम बात करेंगे अबाउट एम के बारे में, तो द ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड विद द एम ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स. ठीक है. बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, यू विल फाइंड द पीपल आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बेसिकली. तो इसी के लिए ह्यूमन राइट्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि उनका क्या क्या राइट्स है. द ह्यूमन राइट्स ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ, इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशन एज वेल. इंडिया के केस में यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द राइट टू एजुकेशन इन द आर्टिकल 21A. देन ह्यूमन राइट्स आर दोज fundamental natural rights from which human beings cannot be deprived or oppressed on the basis of race, caste, nationality, religion, gender, etc. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थीम बहुत जरूरी है इस साल का, there is dignity, freedom and justice for all. हर साल का थीम अलग होता है, इस साल का थीम है dignity, freedom and justice for all. एंड इंडिया का अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन राइट्स एक्ट यहाँ पे लाया गया था इन इंडिया के केस में ऑन 28 of September 1993 में. आफ्टर विच द गवर्नमेंट इट कंसिडर्ड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ठीक है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द NHRC, अबाउट SHRC जो कि स्टेट में काम करता है. तो ये जो NHRC है, तो दिस वाज बेसिकली ब्रॉट अबाउट ऑन October 12 of 1993, एंड दिस क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग लाया गया था, तो इसीलिए इसे कहा जाता है एक दिस इज बेसिकली अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है. सो द ह्यूमन राइट कमीशन जो है ऑल्सो वर्क्स इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल फील्ड एज वेल. ठीक है. लाइक वेजेस के केस में, HIV एड्स के केस में वो बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हैं. हेल्थ के अकॉर्डिंग, चाइल्ड मैरिज के लिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको. ठीक है. तो चाइल्ड मैरिज के केस में द ह्यूमन राइट्स ऑफ एज आई टोल्ड यू, राइट. तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में, ऐसे सारे इश्यूज में द ह्यूमन राइट कमीशन दे टेक अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स, बी इट एट द स्टेट लेवल और द नेशनल लेवल. इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about the Arunachal tourism team taking part in the HOT festival, which is basically Himalayan Orange Tourism Festival. ठीक है. तो इसी के बारे में हम बात करें, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है. तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जगह जान लीजिएगा. उसके बाद दिस इज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. तो ये जो HOT फेस्टिवल, दैट इज द हिमालयन ऑरेंज फेस्टिवल, यू शुड नो द मेन जो यहाँ पे मुद्दा है, इट इज बेसिकली गिविंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग द रूरल टूरिज्म, दैट इज द टूरिज्म एट द विलेज लेवल. अगर हम बात करेंगे अबाउट द करंट कंटेक्स्ट के बारे में, एक 20 मेंबर का एक यहाँ पे डेलीगेशन फ्रॉम अरुणाचल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, बेसिकली दे रिप्रेजेंटिंग द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल. नाउ दे पार्टिसिपेटेड इन द 5th एडिशन ऑफ द हिमालयन ऑरेंज फेस्टिवल. और जो फेस्टिवल है, इट इज बीन हेल्ड एट सॉल्ट लेक. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द प्लेस, दैट इज इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. देखिए, अभी तो कोलकाता जाना बहुत आसान हो गया है फ्रॉम दोनीपोलो एयरपोर्ट, राइट. डायरेक्ट फ्लाइट भी है. द 3-day फेस्टिवल व्हिच एंडेड ऑन संडे, व्हिच वाज एम्ड एट ब्रिंगिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम नेपाल. तो यहाँ पे देखिए, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया ओनली. फेस्टिवल जो है यहाँ पे नेपाल इज ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन दिस. नेपाल बिकॉज इट इज अ हिमालयन फेस्टिवल, राइट. तो हिमालयन ऑरेंज फेस्टिवल है, एंड बिकॉज नेपाल इज हिमालयन कंट्री, तो इसीलिए नेपाल, देन नॉर्थ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस पर्टिकुलर forum, or you can say the festival, right. To interact with one another and understand the importance of promoting the rural tourism. ठीक है. तो इसे स्टार्ट किया गया था इन 2014 में, और दिस इज द लार्जेस्ट हिमालयन रूरल टूरिज्म फेस्टिवल इन एशिया, एंड इट ऑल्सो एम्स टू इंट्रोड्यूस फ्रेश ऑरेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम नॉर्थ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. आपको पता ही होगा कि अरुणाचल का जो ऑरेंजेस है वो कितना काफी फेमस है इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न, नॉट जस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया बट ऑल्सो इन इंडिया एज वेल. ठीक है. स्पेशली फ्रॉम रीजन्स लाइक दाम्बुक, जहाँ पे रिसेंटली भी होने भी वाला है वहाँ पे ऑरेंज फेस्टिवल, राइट. और उसके बाद we all are quite aware of the orange production from the regions like East Siam district, right. तो अगर हम बात करेंगे अबाउट दिस इनॉग्रल सेशन के बारे में, अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म डेप्यूटी डायरेक्टर जो है, दैट इज बेंगिया एम सोनम. नाउ शी हैज इन्फॉर्म्ड दैट सिंस अरुणाचल इज अ ट्राइबल स्टेट विद 26 मेजर ट्राइब्स एंड मोर देन 120 सब ट्राइब, विजिटर्स कैन एक्सपीरियंस रूरल लाइफ एवरी डे.
ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि शी इज लाइक पिचिंग हर स्टेट, ताकि ऐसे प्लेटफॉर्म में अगर यहाँ पे अवेयरनेस फैला जाता है तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से यू कैन अट्रैक्ट योर गेस्ट इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस द रूरल टूरिज्म एंड द इको टूरिज्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इन्वाइटिंग टूरिस्ट टू विजिट अरुणाचल टू एक्सपीरियंस द लोकल हॉस्पिटैलिटी, उन्होंने बताया है कि विद द कमिंग अप ऑफ द डोनी पोलो एयरपोर्ट इन होलोंगी, द ईज ऑफ द कम्युनिकेशन यू विल फाइंड ऑफ ट्रैवलिंग द अरुणाचल प्रदेश इज क्वाइट ईजी नाउ, है कि नहीं। अब अभी आप डायरेक्टली यू कैन कम फ्रॉम द स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल टू अरुणाचल प्रदेश इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस द टूरिज्म ऑफ द स्टेट। तो देयर वर यहाँ पे 35 स्टॉल्स वर देयर डिस्प्लेइंग ऑरेंजेस फ्रॉम अरुणाचल, नेपाल एंड दार्जिलिंग। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ऑरेंजेस इन अरुणाचल स्टॉल जो है इट वाज सोल्ड आउट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, ठीक है। काफी डिमांड है इस अरुणाचल प्रदेश का जो ऑरेंजेस है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Now this was the question that I asked in the previous video. Let's look at the answer. The answers are, तो पहला यहाँ पे बात किया गया था अबाउट द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। सो दिस पर्टिकुलर जो है फार्मर्स विल हैव टू पे यूनिफॉर्म नहीं है, देयर आर डिफरेंट स्लैब्स, जैसे 1.5%, 2%, 5%। सो ओनली नंबर 2 इज करेक्ट। उसके बाद इफ वी स्पीक अबाउट द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, तो इट इज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बाद में यहाँ पे सेक्युलर जैसे वर्ड्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट, राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट द डिस्ट्रिक्ट के बारे में, व्हिच इज लॉन्च द इनिशिएटिव कॉल्ड मिशन जीरो वेस्ट, इट इज ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। So for now that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.